صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے. تیسرے عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا عشرہ فرمایا. تیسرا عشرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ٹائم تھوڑا ہو، کام بہت ہو، منزل بہت دور کا ہو، مسافت لمبی ہو تو پھر مسافر سویا نہیں کرتے، وہ چلتے ہی جاتے ہیں. میرا اور آپ کا جو اصل مقصد ہے زندگی کا وہ اپنے رب کی رضا کو پانا ہے، اپنے رب کو پانا ہے. جتنے ایک انسان اس کے لیے مشقتیں جھیلے، جتنا ایک انسان مشکل اٹھائے، تھک جائے، جو مسئلہ اس کے ساتھ ہونا ہے ہو جائے، لیکن رب اس کو مل جائے، رب کی رضا اس کو مل جائے تو اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے قرب کے بہت سارے مواقع عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود اپنے ملنے اور اپنے آپ کی قیمت کتنی کم لگا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بعض اوقات تیرے تلے لکھے ہوئے، پا لکھے ہوگا پکا 1 2 3 ٹھیک ہے رہنے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے پانی مانگا تھا، تجھے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو خالق مالک ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے تجھ سے پیاس کے وقت پانی مانگا تھا، اگر تو میرے بندے کو پانی پلاتا تو وہیں پر میں بھی تجھے مل جاتا. ایک گھونٹ پانی پلانے پر اللہ مل جاتے ہیں، ایک لقمہ کھانے کھلانے پر اللہ مل جاتے ہیں، کسی کی معمولی سی خدمت کرنے پر اللہ مل جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو انہی قرب کے مواقع میں سے ایک موقع رب تعالیٰ نے رمضان کا مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. پھر اس رمضان میں اللہ نے بہت سارے اپنے قرب کے موقع مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ، نفل اللہ کے قرب کا ذریعہ، سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، تلاوت اللہ کے قرب اور اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے. میں نے اور آپ نے تو آج تک
نہ اس نیت سے سجدہ کیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ مل جائے، نہ اس نیت سے میں نے اور آپ نے نفل پڑھے کہ ان نفلوں کے بدلے مجھے میرے رب مل جائے، نہ میں نے کوئی ایسی نیکی کی کہ اس نیکی کے بدلے مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا رب مل جائے، اور نہ ہی آج تک میں نے اس نیت سے کوئی تلاوت کی ہے کہ مجھے میرے رب مل جائے، میں اپنے رب سے باتیں کروں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں مجھے اللہ دکھائی دے۔ مشہور واقعہ ہے، ویسے چلتے چلتے یاد آ گیا، بات تو کرنی اعتکاف کے متعلق۔ زیب النساء بہت نام ہے بڑا، بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کا ایک شاعر تھا، اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جملہ کہہ دیا، مصرع کہہ دیا، در ابلق کسی دیدہ نہ موجود، در ابلق کسی دیدہ نہ موجود، در ابلق چھت کبرا بوتی جو آدھا سفید ہو اور آدھا کالا۔ فارسی میں اس نے شعر کہہ دیا کہ در ابلق کسی دیدہ نہ موجود، کہ در ابلق نہ موجود ہے اور نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے۔ اب مصرع ایک کہہ دیا، اب زور لگا رہے شعر پورا ہو جائے، زور لگا رہے شعر پورا ہو جائے، نہیں پورا ہوا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میرا جو بھی بندہ اس شعر کو مکمل کرے گا مجھ سے منہ مانگا انعام لے۔ بڑے بڑے شاعروں نے زور لگایا، نہیں ہوا۔ زیب النساء جو وقت کی بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک دفعہ سرما لگا رہی تھی، سرما لگاتے ہوئے اس کے آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ آنسو جا کر شیشے کے اوپر لگا، کچھ آنسو کچھ سرما، رنگ بن گیا وہی در ابلق والا۔ اس نے فوراً اس کے منہ سے نکل گیا، مگر مور بتا سرمائے آلود۔ ہاں، جب ایک شہزادی کے آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو جس کے ساتھ سرما ملا ہوا ہو تو وہ در ابلق ہوا کرتا ہے۔ شعر اس تک پہنچ گیا، شعر اس کو پسند بھی آیا، مصرع پسند آیا، اس کا شعر مکمل ہو گیا۔ اس نے خط لکھ دیا کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں جس شاعر نے میرے اس مشکل کو آسان کیا اور میرے اس شعر کو مکمل۔ اب زیب النساء کے والد کے پاس خط پہنچا دربار میں، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میری بیٹی اور باہر کا شاعر، اور وہ اس سے ملاقات کرے، وہ اس سے ملے، یہ کیسے ہو؟ پریشان ہو گئے، جا کے بیٹی کے سامنے مسئلہ رکھ دے، یہ تم نے کیا کیا؟ پردے کا دور تھا، حیا کا دور تھا۔ اس نے کہا بجی اب پریشان نہ ہو، میں مسئلہ حل کر لیتا۔ کیسے کرتا ہے؟ اس نے اگلا ایک شعر لکھ دیا، من مخفی منم چو بوئے گل در برگی گل، من مخفی منم چو بوئے گل در برگی گل۔ جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے نا، پھول نظر آتا ہے لیکن اس میں خوشبو نظر نہیں آتی، دیکھ اس خوشبو کو کوئی نہیں سکتا لیکن سونگ لیتا ہے بندہ۔ تو اس نے کہا میں اپنے شعر میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، اگر میرا دیدار کسی نے کرنا ہے وہ میرے شعر کو پڑھتا جائے، میرے شعر کے پڑھنے کے ساتھ اس کو میرے دیدار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کے شعر میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے شعر میں خود موجود ہوں، تو اللہ اپنے کلام میں کیسے موجود ہے؟ اللہ کے کلام کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء، ان کے شاعری اور ان کی فصاحت اور بلاغت جواب دے گئی، ہاتھ کھڑے کر گئے، اور قرآن کا وہ چیلنج آج تک موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے کوئی ایک مثل صورت لا کر دکھا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، علامہ اقبال ہم میں سے کسی نے دیکھے؟ صرف اس کی شاعری پڑھی ہے نا، شاعری پڑھ کر علامہ اقبال کے لیے احترام سب کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ محبت سب کے لیے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟
इकबाल का नाम आ जाए, हम कहते यार इकबाल क्या आदमी था, किसने देखा आप में से? सिर्फ उसकी शायरी को पढ़ा, उसकी शायरी को देखा, तो उसकी शायरी पढ़ने और उसकी शायरी देखने की वजह से उसका इख्तिराम भी दिल में आ गया, अदब भी दिल में आ गया, मोहब्बत भी दिल में आ गई। मैंने आज तक अल्लाह का कुरान पढ़ा नहीं है, तो अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में कैसे आ गई? मैंने इस नीयत से कुरान को पढ़ा नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरा दिल करे कि मैं अपने अल्लाह से बातें करूं, मैं 2 रकात नफल की नीयत बांध लेता हूं, सुभान से शुरू हो जाता हूं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बंदा किससे बातें कर रहा है? अल्लाह से। और जब मेरा दिल करता है कि मेरे रब मुझसे बातें करे, मैं बंदा वो रब मुझसे बातें करे, मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, रब मुझसे बोल रहा होता है, मैं अपने रब के कलाम को सुन रहा हूँ। तो अल्लाह ने कुर्ब के बहुत सारे मौके अता फरमाए, मैं उस अल्लाह के कुर्ब को पाने वाले बन तो जाएंगे। उस अल्लाह को पाने के लिए मैं और आप कुछ कुर्बानी तो दे। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे भी सारी मर्जियात चले, मेरी भी सारी ख्वाहिशें पूरी हो और मुझे अल्लाह भी मिल जाए। तो मशहूर वाक़या इब्राहिम बिन अदम रहिमहुल्लाह ताला का, बादशाह था वक़्त का, चलते चलते किसी अल्लाह वाले के साथ उसका ताल्लुक हुआ, सलाम दुआ हुई, उसने अल्लाह अल्लाह सिखाया। रात को अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, अपने शाही महल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बल्कि मशहूर जो इससे पहले की बात है, एक मर्तबा उसकी बांदी जो थी नौकरानी, वो बिस्तर लगाई गई, बिस्तर लगा के थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर बैठ गई। बिस्तर नरम, बादशाह का बिस्तर था, अच्छा लगा, उसको नींद आ गई। वो बाहर से आया, उसने रख के लगाई उसको, 1 2 3। वो पहले हंसी, फिर पहले रोई, फिर हंसी, परेशान हो गया। चलो रोड दी थी, वजह सामने है, लगी है, हंसती किस गल तो गई। पूछा उससे, उसने कहा रोई तो इसलिए हूं कि लगी है, मुझे तकलीफ हुई है, और हंसी इस बात पर हूं कि मैं मिनट 2 मिनट 5 मिनट इस बिस्तर पर सोई हूं, मुझे ये सजा मिल रही है। जो साल हाथ साल से सो रहा है, अगर उससे पूछ हो गई तो वो क्या करे? मैं और आप कभी कभी सोच लिए करें, अल्लाह की जितने नेमत है इस्तेमाल करते हैं। अगर अल्लाह ने छोटी से छोटी नेमत के बारे में पूछ लिया तो मेरे और आपके पास जवाब नहीं बच सके। जितनी हमारी बंदगी है, जितनी हमारी अल्लाह की इताअत है, जितना हम अल्लाह को मानते हैं, जितना हम अल्लाह की मानते हैं, ये सब बातें मेरे और आपके अपने पास। इब्राहिम बिन अदम को नींद ना आए, कल तो उस नौकरानी थी, बिल्कुल सोना नहीं, भाई मैं तो कब से उस पर सो रहा हूं, अगर अल्लाह ने मुझे सिर्फ इसी बिस्तर पर सोने का हिसाब लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? बैठ गया, अल्लाह अल्लाह करने लग गया। अब जिसके लिए अल्लाह रास्ता खोल देते हैं ना, तो फिर उसके लिए आसानियां होती हैं। महसूस किया, उसके जो शाही छत है, वजीर आजम हाउस है, उसके छत के ऊपर कोई बंदा चल फिर रहा है। कारिंदों को बुलाया जाए, भाई देख के आओ, क्या सिक्योरिटी कोई नहीं है ऊपर बादशाह के छत के ऊपर, बंदा रात के 12 बजे के बाद गए। कारिंदे बंदे को पकड़ कर ले आए, हाँ भाई तू की करता पैस? फिर बादशाह सलामत मेरा उठ गुम होया सी, तो मैं वो तलाश कर रहा। बेवकूफ आदमी, ऊंट, और वो भी कहा छत पे, और वो भी बादशाह के महल में, बादशाह के जब पर, तू आम आदमी है, तेरे उठने इधर करना की? तो वो कह गया, बादशाह सलामत, अगर बादशाह के छत पर ऊंट नहीं मिलते ना, तो नरम गरम बिस्तरों पर अल्लाह भी इसके लिए निकलना पड़े। निकले, फिर ऐसा निकले, कैसे अल्लाह वाले बन गए, ऐसा अल्लाह के साथ ताल्लुक बन गया। अल्लाह किसी के मेहनत को रायगा नहीं जाने देते, अल्लाह किसी के कुर्बानी को जाया नहीं होने देते। वही इब्राहिम बिन अदम है, इतना अल्लाह वाले बन गए, इतना कश्फ व करामत वाले बुजुर्ग बन गए कि एक वक्त वो है, किसी को कहते हैं जबले अबी कुबैस पर खड़े होकर कि अल्लाह के पास बंदे ऐसे हैं, अगर वो पहाड़ को कहे चल तो पहाड़ भी साथ चलना शुरू हो जाता है। जबले अबी कुबैस हिलने लग गया, इब्राहिम बिन अदम पैर मार कर कहता, भाई मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं तुझे चलने का नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे में नहीं मिलती।
اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے، دنیا سے کٹ جانا ہے، دنیا کو پیچھے رکھ لینا ہے، اپنے اللہ کو اور اللہ کی رضا کو آگے رکھ لینا ہے، اپنی خواہش پر، اللہ کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی اللہ کی مرضی پر قربان کرنی ہوتی ہے، تب جا کر پھر ایسا موقع ملتا ہے، تب جا کر پھر اللہ مل جاتی ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی مل جاتی ہے، اللہ جنتوں کا اعلان فرماتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لیے محنت کرو گے، میری مرضی ہوگی، دنیا دوں یا نہ دوں، جتنا مرضی دوں، تمہاری محنت کے بقدر نہ دوں، تمہاری محنت سے زیادہ دوں، میں اللہ جتنی مرضی چاہے دے دوں۔ دیکھتے نہیں ہے ایک بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو تھوڑے پیسے ملتے ہیں، ایک بندہ 2 گھنٹے کر لیتے اس کو زیادہ مل جاتے، کبھی 1 گھنٹہ بندے نے ڈیوٹی کر لی، زیادہ پیسے مل گئے، 10 گھنٹے کے کچھ بھی نہیں ملے۔ تو لوگ فرماتے دنیا بقدر مقدر، تم جتنی محنت کرتے رہو تمہاری دنیا تمہیں مل جائے گی، اگر آخرت کی محنت نہیں، عقیدہ توحید نہیں، اپنے آخرت کی یاد نہیں، تو آخرت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے آخرت کا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، آخرت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، آخرت کے لیے اپنے اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے، آخرت کو پانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حال یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کے ذہن میں ایمان اور اللہ کی توحید اور وحدانیت رچ بس چکی ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں میں آخرت کے لیے تمہارے کیے ہوئے ہر ایک عمل کا تمہیں بدلہ عطا کروں گا، تمہارے ہر ایک کیے ہوئے عمل اور ہر ایک کیے ہوئے کام کی قدردانی کی جائے گی۔ کان سعیہم مشکورا، آخرت کے لیے جو کرو گے اللہ فرمائیں گے ہر ایک کی قدر کی جائے گی اور ہر ایک کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور اللہ قدردان اللہ ہے، جب بدلہ دینے پہ آ جائے پھر وہ بدلہ دیتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے، عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی ایمان لے آئے، باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، چاچو لوگ گھر میں تھے، والدہ تھی، پتہ چلا انہوں نے بڑا زور دیا ایمان چھوڑ دو نہیں تو گھر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا اب گھر کے آپ جدھر سے مرضی نکال لو، جو ایک رنگ اپنے اوپر لگا چکا ہوں ابھی کہیں نہیں جائے، جو ایک روگ دل کو لگ گیا ہے کلمے کا، حضور کی محبت کا ہی کہیں نہیں جا سکتا، سختی کی گھر سے نکل جاؤ، نکال دیے گھر سے نکالتے ہوئے دیکھا کپڑا بھی اوپر ہمارے پیسوں کا، کپڑا بھی ہمارا دو، ایسے ہی نکل جاؤ گھر سے، ایسے ہی نکل گئے۔ ماں تھی، اپنا سر کا دوپٹہ دیا، اس کو 2 ٹکڑے کیا، کہتا ہے ایک ٹکڑا بیٹے اوپر جسم کے کر لینا، ایک نیچے باندھ لینا، تہبند بنا دینا۔ بیٹا نکلا رات کو، صبح سحری کے وقت نماز سے پہلے حضور صحابہ کو فرما رہے تمہارا بھائی ذوالبجادین تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں اور آپ غور کر لیں، ذوالبجادین نے اپنے برادری کی کنبی کی قربانی دی، چھوڑ دیا برادری کو۔ دوسرے نمبر پر ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے کپڑوں کی قربانی دی، اللہ نے اس کا بدلہ کیا عطا کیا؟ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینہ میں زندگی گزار رہے، ایک سفر پیش آیا، صحابہ کرام جا رہے ہیں، ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سفر میں ہیں، راستے میں بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے آ گئے، فرمایا جب تمہارا بھائی اس کے انتقال کا وقت قریب ہے، اس کے اوپر آثار ہے، جب فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ فوت
हो गए। सहाबा कराम ने इत्तला की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, कब्र तैयार हो गई। अब कब्र में रखने के लिए कौन उतरता है? मैयत को कब्र में रखने के लिए अपने ही उतरते हैं ना, भाई हो गया, बेटा हो गया, कोई अपना करीबी। और शरीयत का उसूल भी यही है कि कफन दफन का सारा इंतजाम खुद कर लिया करो। औरतें औरत को, घर की औरतें औरत को गुस्ल दे, घर के मर्द को गुस्ल दे, मैयत को गुस्ल दे। लेकिन हम कहते हैं हमें तो डर लगता है, जून दे तो डर कोई नहीं लगता, तो मर जावे दोस्तों डर लगना शुरू हो जाता है। अजीब मामला है। शरीयत का हुक्म है, सीखो तरीका, गुस्ल, मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीखो, मैयत को कफन देने का तरीका सीखो। अपने ही कब्र में उतरते हैं। अब जुल्बजारैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो अपनों को छोड़ आए थे, अल्लाह ने उसका बदला किया दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस कब्र में उतरे, बल्कि उससे पहले कफन की बारी आई। जुल्बजारैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने जिस्म के कपड़े अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की दीन की खातिर कुर्बान कर चुके थे। सहाबा कराम ने गुस्ल दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वो नबूवत वाली चादर अता फरमाई, जिस चादर के कसम अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जो चादर मदनी कमली वाले के कमली और उसके मोढे पर और कंधे पर हर वक्त बड़ा करती थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर पकड़ा दी और फरमाया अपने भाई जुल्बजारैन को इसमें कफन दे देना। तो ईमान की हालत में जिसको हुजूर की चादर मिल जाए कफन के लिए, उससे बड़ी सआदत है। उधर कुर्बानी थी कपड़ों की, उसका बदला अल्लाह ने क्या अता फरमाया? हुजूर की नबूवत वाली चादर मिल गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आप उतरे, बनफ्से नफीस उतरे। अब्दुल्लाह जुल्बजारैन अपनी बरादरी की कुर्बानी दे के आए थे, अल्लाह की खातिर बरादरी को छोड़ कर आए थे। इधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली और वारिस बने हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे, सहाबा कराम से फरमाया अपना भाई जुल्बजारैन जरा पकड़ा देना। पकड़ा के कब्र में रखा। कब्र में रखने के बाद कफन चेहरे से हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते हैं, या अल्लाह मैं इससे राजी, तू भी इससे राजी हो जा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते मेरे तो चीख ही निकल गई, काश ये मैं होता और मैं उमर के बारे में हुजूर फरमाते कि अल्लाह मैं इससे राजी, तू भी राजी हो। जो मिलता है कुर्बानी पर मिलता है, जो मिलता है कुछ पाना हो तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मैं कहूँ कि मैं घर बैठा रहूं, आज सुबह ही मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा यार दूसरे भाई नमाज के लिए नजर गए, कल उस सुबह सहरी खा के उठे ही पढ़ के तो सो जाते हैं। मैंने कहा किसी से पूछ लेना कि सऊदीया हम नौकरी और मुलाजमत के लिए क्यों जाते हैं, कतर क्यों जाते हैं, दुबई क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां का एक पाकिस्तान का कितना बनता है? 40, 45, 20, 25। इसी खातिर हम मुल्क छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घर बार बरादरी पूरा इलाका मुल्क छोड़ देते हैं। क्यों? कि वहां पर मुझे एक के बदले क्या मिलता है? 40 मिलेगा, 45 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। घर से यहां तक मैं नहीं आता, घर में नमाज पढ़ूंगा, एक नमाज का मुझे सवाब मिलेगा। यहाँ मस्जिद में आकर जुमात के साथ मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे 27 नमाजों का सवाब देगा। वो दुनिया है, वो सब कुछ मुझे नजर आ रहा है। मैं अपने बेटे को भी भेज देता हूँ, उसकी जुदाई भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, माँ भी जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, बहन भाई सारे एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन नजर आ रहे दुनिया मिल रही है, एक के बदले इतने मिल रहे हैं, इसलिए कोई मुशक्कत नहीं है। जब भी माँ मिलेगी हंस मुख के, जब भी फोन पर बात होगी खुश खुश खुश। और यहाँ पर अगर मस्जिद कोई आना चाहे, मस्जिद आकर उसने 2 मिनट मस्जिद में ज्यादा लगा लिए, तुम जाके घर उससे पूछ होती हाँ भाई इतनी देर मस्जिद में लगा, मस्जिद जाने की क्या जरूरत, तुझे वहां जाकर क्या मिला? भाई जिसको पाने के लिए यहाँ आया था वो इसको मिल चुका है। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अपनी सारी ख्वाहिशात अल्लाह के लिए कुर्बान कर जाता है, अल्लाह उस बंदे के हो जाते हैं, अल्लाह फिर उसके हो जाते। बल्कि रिवायत में आता है अल्लाह फरमाते मैं उसके आंख बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका ये बन जाता हूँ, मैं उसका ये बन जाता हूँ, सारा कुछ मसला हल हो जाता है। तो अब आ गया एक अमल जो अल्लाह की रजा का अमल है, अल्लाह की खुशनुदी का अमल है,
अल्लाह जिससे मिल जाते हैं, वो अमल है एतिकाफ का। हजरत फरमाते हैं एतिकाफ की रूह दिल को अल्लाह की पाक ज़ात के साथ वाबस्ता कर लेना, दिल को अपने अल्लाह के साथ वाबस्ता कर कि इस दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। मजज़ूब है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला के खलीफा हैं, शायर आदमी थे। एक मरतबा शेर कह गए, सारी दुनिया दिल से रुखसत हो गई, सारी दुनिया दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। और थानवी ने शेर सुना, फरमाया 2 लाख का शेर है अगर कोई इस बंदे को समझे। सारी दुनिया दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। किसको कह रहा है? अल्लाह को। अपने अल्लाह के लिए अपने दिल को साफ कर लेना, अपने अल्लाह के साथ अपने दिल की वाबस्तगी कर लेना, सब तरफ से हटकर उसके साथ एक हो जाना, सारी मशगूलियतों के बदले उस अल्लाह के साथ में मशगूल हो जाना और उसके गैर से मुनक़ते होकर अलग थलग होकर अपने ख्याल और फिक्र भी उस अल्लाह के बारे में कर लेना। ये है एतिकाफ की रूह। और कोशिश भी बंदा करे, ये नहीं कि जो भी आए उसके साथ गपशप लग रही, जो भी आए उसके साथ हालात लिए जा रहे हैं और सारा का सारा मामला चल रहे हैं। नहीं, बस जब तूने जाहिरी तौर पर अपने आप को सबसे काट कर एक मस्जिद में और अल्लाह के घर में बिठा दिया, तो अब बाहर की दुनिया की तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया तेरे बगैर भी चल जाएगी, कोई तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा एतिकाफ बैठता है, बाहर की दुनिया में जितनी नेकियां हो रही होती हैं, अल्लाह उस एतिकाफ वाले के नामे आमाल में फ्री में लिखते जाते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 10 दिन रमजान का सुन्नत एतिकाफ बैठता है, अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रे मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। जो बंदा एतिकाफ अखीर अशरे का सुन्नत एतिकाफ बैठता है, अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 1 दिन का एतिकाफ बैठता है अल्लाह की रजा के लिए, 1 दिन का, अल्लाह उसको और उस बंदे को जहन्नम से 3 खंदक दूर फरमाते हैं। और जमीन और आसमान के दरमियान के जो खला है ना, ये 1 खंदक है, इस जितना गोया 3 खंदकें बंदा जहन्नम से दूर रहेगा। इसलिए मेरी और आपकी कोशिश हो, जितना हो सके जिंदगी में, चलो बार बार नहीं मौका मिलता, एक बार तो चलो बंदा इस सुन्नत पर अमल करे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतिकाफ फरमाया, जब से रोजे फर्ज हुए एतिकाफ फरमाते रहे। एक दफा नहीं फरमाया, अगले साल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ। और एतिकाफ करने वाले की एक मौज है, एक फायदा ये है कि बाकी दुनिया में किसी को शबे कदर का सवाब मिलता है या नहीं मिलता है, एतिकाफ करने वाले को अल्लाह जरूर अता फरमाता है। क्योंकि वो मशगूल है इबादत में, वो सो रहा है तब भी उसके लिए इबादत, वो जाग रहा है तब भी उसके लिए इबादत, वो तिलावत में है, वो जिक्र में है, वो नफल में है, वो जिस काम में लगा हुआ है उसके लिए इबादत ही इबादत है। लिहाजा उसको सवाब का बिल जाना यकीनी हो। और सबसे बड़ी बात, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो यातकिफुज़्ज़ुनूब, एतिकाफ करने वाला ये 10 दिन गुनाहों से बचा रहता है। अल्लाह के घर में है, अल्लाह के माहौल में, फरिश्तों के माहौल में, किसके दर पर आकर पड़ा हुआ है, किसके दर का सवाली बना हुआ है? मस्जिद किन का माहौल है? फरिश्तों का माहौल है, पाक घर है, अल्लाह का घर है। इससे बड़ी और जगह क्या हो सकती है? इससे बेहतरीन और जगह क्या हो सकती है कि अल्लाह ने अपने दर पर बुला लिया और अल्लाह ने एतिकाफ बैठने की तौफीक अता फरमाई।
कोशिश करनी चाहिए कि एतिकाफ में और आप बैठे ये नीयत और ये इरादा कर ले कि मैंने एतिकाफ में अपने रब से अपने लिए नेकी मांगनी है, नेक बनने के इरादे से मैंने एतिकाफ बैठना है कि अल्लाह मेरी जिंदगी को बदल दे। जैसे जाहिरी तौर पर मैं दुनिया को छोड़ आया हूँ, जाहिरी तौर पर मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके आया हूँ, तो अल्लाह असल में मुझे अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह असल में मेरे दिल से दुनिया को निकाल दे, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। मेरे भाई हकीकत यही है कि अगर एतिकाफ सही मानों में किया जाए और नेक बनने के इरादे से किया जाए, हमारे यहाँ होता असल में यही है कि बस देखा देखी हम एतिकाफ बैठ जाते हैं या सुन लिया फजीलत सुन ली एतिकाफ बैठ गए, साडा कोई नीयत कोई इरादा नहीं होता। बस जितने दिन एतिकाफ बैठे हैं उतने दिन तो माशाल्लाह नमाजी भी, उतने दिन तो माशाल्लाह रोजादार भी, उतने दिन तो माशाल्लाह चेहरे पर सुन्नत नबी भी सज गई। जैसे एतिकाफ खत्म करके निकलते हैं सबसे पहला काम किधर होता है? हमाम पहुंचना होता है ताकि ये जो दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है इसको क्या कर लिया जाए। हालांकि खुदा के बंदे अल्लाह के दरबार से तो उठ के आया है, तेरा नामा अमाल गुनाहों से पाक साफ हो चुका है, अब थोड़ी देर के लिए तो रुक जा, एक दिन तो गुजार कम अज कम, 2 दिन तो गुजार ले कि तेरे नामा अमाल में कोई गुनाह न लिखा जाए। लेकिन हम क्योंकि हमारा इरादा यही होता है, कितने दिन के लिए हमने नेक बनना होता है? 10 दिन के लिए। उस तो अंक साढ़ा इरादा कोई नहीं होता। अगर बंदा इरादा करे पूरी जिंदगी के लिए, ऐसे वाक़यात मौजूद है कि अल्लाह एतिकाफ की बदौलत लोगों की जिंदगियों को फेर दे। एतिकाफ की बदौलत खुदा की कसम डाकू लोग ईमानदार बन गए। हमारे अपने साथ क्लास में मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ एतिकाफ वालों को, हमारे साथ क्लास में बलूचिस्तान का एक लड़का था, ब्लैक बेल्ट था, वो कराटे में था जबरदस्त किस्म का। दादा हमारी पूरी टीम थी, कोयटा में हम लोग घर ताड़ते थे, किसी अफीसर का घर है, कोई इस तरह का घर है, वो घर जब ताला लगा होता था उसको हम जाकर पूरी टीम 5-6 बंदों की वो घर लूट लिया और लाहौर आ गए, यहाँ पर अपने याशी की पैसे खत्म हो गए, फिर वापस गए, फिर कोई और काम कर लिया। कह रहा मैं बैठा था इस नीयत से कि वैकेंसी आई थी प्राइवेट स्कूलों की और सरकारी नौकरियां आई थी, मैंने कहा चलो मैं भी कोई पीटी मास्टर होता है या कोई इस तरह का होता है जो बच्चों को वर्जिश कराते, मैंने कहा चलो मैं वो लग जाऊंगा। एतिकाफ में इस नीयत से बैठ गया कि अपने अल्लाह से मांगूंगा कि मुझे नौकरी मिल जाए। वो मांगते मांगते मैंने अल्लाह से अल्लाह को मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह छोड़ नौकरी क्या करना है, अल्लाह मुझे हिदायत नसीब करो। अब एतिकाफ बैठे बैठे कहते मेरे दिल में ख्याल आ गया, दुनियावी तालीम तो मेरे पास है, मैं अब आलिम बनूंगा। जैसे एतिकाफ से उठा अपने वालिद से मैंने कहा मैं तो आलिम बनने जा रहा हूँ, मैं मदरसे में दाखिला लूंगा। ने कहा क्या कह रहा है, कोई खैरियत तो है? ने कहा नहीं कि मैं इरादा कर चुका हूँ। मदरसे आगे फैसलाबाद इमदादिया में हमारे उस्ताद मौलाना मुफ्ती मुजाहिद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको देखकर क्लीन शेव हुए बिल्कुल जैसे आम बंदा होता है। ने कहा जी मुझे दाखिला मिल जाएगा। उन्होंने कहा तुझे नहीं मिलेगा तो और मिलेगा किसको? पढ़ना शुरू किया। हमसे काफी बड़ी उम्र का उसने जब आपने वाकयात फिर सुनाए, कैसे मैं इसलिए कह रहा था कैसे एक डाकू बंदे की जिंदगी बदल गई, फिर वो माशाल्लाह इल्म हासिल कर गया, आलिम बन गया और अपने इलाके में जाकर जो है दीन की खिदमत में लगा। अगर ऐसे लोगों की जिंदगी अल्लाह बदल देते, हम मांगे तो सही अल्लाह से, हम अल्लाह को अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे अपना आप दे दे, कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, कि अल्लाह मुझे अपना इश्क, अपने लज्जत, अपनी याद, अपना जिक्र, अपनी इबादत, अपने सज्जों की लज्जत या अल्लाह मुझे ये अता फरमा। हम तो मांगते नहीं अल्लाह से। तो इसलिए खासतौर पर एतिकाफ वाले को चाहिए, जो जवान है वो सज्जों में पड़े रहे अपने अल्लाह के सामने, रो रो के दिखाए अपने अल्लाह को। और जो बड़ी उम्र के हैं वो सज्जे में ज्यादा देर नहीं रख सकते, तो अपना बैठ के अल्लाह से मांगे, लेट के अल्लाह से मांगे। यानी ये 10 दिन मेरे और आपके दिलो दिमाग में कौन घूमे? अल्लाह। किसकी फिक्र हो? अल्लाह की। किसकी मोहब्बत हो? किसको पाने की तड़प हो? किसकी तलाश हो? अल्लाह। और फिर हम अल्लाह से मांगे भी तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह मेरा और आपका नाम भी अपने नेक लोगों के सफ में लिस्ट में शामिल फरमाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक।
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। करीम अल्लाह हम सबके मग़फ़िरत के फैसले फरमा। रहीम अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। मग़फ़िरत के दिन चल रहे हैं, आखिरी दिन है, अल्लाह हम सब के बारे में मग़फ़िरत के फैसले फरमा। आज इफ्तारी से पहले पहले जिन लोगों को तू जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा, जिन लोगों के मग़फ़िरत के तू फैसले करेगा, अल्लाह हमारा भी उसमें नाम शामिल फरमा, हमारे वालिदैन का भी नाम शामिल फरमा, हमारे बहन भाइयों का भी नाम शामिल फरमा। रब्बे करीम तुझसे मांगते हैं, तू हमारा दाता है, हम तेरे मांगते हैं। तू हमारा दाता है, हम तेरे मांगते हैं। तू हमारा माबूद है, हम तेरे आबिद हैं। तू हाफिज है, हम महफूज है। तू देने वाला, हम मांगने वाले। हमें मांगना नहीं आता, हम मांग कर थक जाते हैं। तू देने से नहीं थकता, तू देने से राजी होता है, तू देने से खुश होता है, तू मांगने से राजी होता है। अल्लाह हम सबसे राजी हो जा, अपनी रजा हमें नसीब फरमा, अपनी रजा वाले आमाल हमें नसीब फरमा। अल्लाह रमजान का आखिर आशरा हमें इबादत के साथ, आफियत के साथ, सेहत के साथ और आमाल के साथ नसीब फरमा। रब्बे करीम जिनके एहतिकाफ का इरादा है उनके लिए एहतिकाफ करना आसान फरमा। हमारे मुल्क के हालात को बेहतर फरमा। वबाई अमराज से हम सबके हिफाजत फरमा, सबके माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, सबके इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, सबके घरों की हिफाजत फरमा। माँ बहन बेटी को हया वाली जिंदगी नसीब फरमा, हया वाली चादर अपने आप पर डालने की तौफीक नसीब फरमा। आंख में हया पैदा फरमा, नजर में हया पैदा फरमा, दिलो दिमाग में हया पैदा फरमा। अल्लाह पूरे जिस्म को सरापा हया बना, पूरे जिस्म को सरापा हया बना, पूरे जिस्म को सरापा हया बना। रब्बे करीम आज मग़फ़िरत के दिन के आखिरी दिन है, अल्लाह हम सब के मग़फ़िरत के फैसले फरमा, हम सब के मग़फ़िरत के फैसले फरमा। पता नहीं जिंदगी में ये दिन फिर मिलते या नहीं मिलते, सवाल तुझसे यही करते हैं कि अल्लाह जिंदगी में बार बार ये दिन हमें नसीब फरमा, बार बार ये दिन हमें नसीब फरमा, आफियत के साथ नसीब फरमा, सेहत और इबादत के साथ नसीब फरमा। अल्लाह हमें ईमान की सलामती नसीब फरमा, ईमान की सलामती नसीब फरमा। ईमान में इजाफा वाले अमाल हमें करने की तौफीक नसीब फरमा, ईमान में इजाफा वाले अमाल हमें करने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान की लज्जत और कुरान की तिलावत की लज्जत हमें नसीब फरमा, अपनी याद हमें नसीब फरमा, अपनी याद की जिंदगी हमें नसीब फरमा। अपने सामने लंबे लंबे सजदे और लंबे लंबे सजदों में अपने से मांगना हमें नसीब फरमा। अल्लाह दुआ की तौफीक हमें नसीब, दुआ की तौफीक हमें अता फरमा, हमें मांगना अता फरमा, मांगने का सलीका और तरीका हमें सिखा, मांगने का सलीका और तरीका हमें सिखा। जितने अजीज और क़रीब इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, अल्लाह तमाम के मग़फ़िरत के फैसले फरमा। हाजी इफ्तिखार साहब आज फौत हुए हैं और हमारे इलाके के बहुत सारे औरतें और बहुत सारे लोग फौत हो चुके हैं। अल्लाह तमाम के तमाम जो इस माह मुबारक में तेरे पास आ चुके हैं, अल्लाह सबके मग़फ़िरत के फैसले फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। इस माह मुबारक और इस माह की बरकत से अल्लाह जितने भी कब्रिस्तान में मैयतें हैं मुवहिदीन मुसलमान, तमाम के अज़ाब को मौकूफ फरमा, तमाम के अज़ाब को मौखर फरमा और अल्लाह क़यामत के सुबह तक उनको अज़ाब से छुटकारा नसीब फरमा। उनके बारे में जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा, जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर।